ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94 नंबर पे आया है, जिसमें से 102 देशों ने भाग लिए। और हमसे बेहतर भुखमरी में पाकिस्तान है, हमसे बेहतर नेपाल है, बांग्लादेश है। ये सारे देश हमसे बेहतर हैं। और हम जो कहते हैं कि हम विश्व गुरु बना देंगे, वो ऐसा क्या विश्व गुरु? भूखे पेट हम विश्व गुरु बनेंगे क्या? भूखे पेट क्या हम मंगल पे जाएंगे? ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਏਰੀਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਿਲਟ ਮੱਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਤੀ ਰੇਟ ਹੈ 800 ਤੋਂ 900 ਰੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਉਹ 1850 ਰੁਪਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਈਏ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਤ ਹੋਤੀ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਉਹ? सरदार जी, आप कहाँ से आए हैं और क्यों आए? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਖਾਤਰ ਆਏ ਹਾਂ। उनकी हाँ में हाँ क्या नारा लगाने के लिए आए हैं। अच्छा, जब हम सब लोग कहते हैं कि भाई काला कानून है, तो काला कानून क्यों है? ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਦਾ MPS ਰੇਟ 1850 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ 600 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 900 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੀਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 1850 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 500-700 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕੂਗੀ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈ ਉਹ महंगे रेट ਦੇ ਵਿੱਚ बेचा जा रहा है। वो मतलब बाहर की स्टेट से आके लोग सामान अपना पंजाब में महंगे रेटों पे बेचते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बाहर की कौन सी स्टेट्स के लोग आके किसान आते हैं? ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨਾ ਆਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਿਕਦਾ 850। यानी कि कोई भी कहीं से भी आके कहीं सामान बेच जाता है। तो फिर जो मोदी सरकार ये कह रही है कि जो हम बिल ले आए हैं, अब किसान को वन नेशन वन मार्केट वन मंडी हो गई जो कह रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हो कि किसान अब कहीं भी जाके बेच सकता है? जब पहले ही किसान आके बेच रहा था, तो इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा बताएंगे। ਹਾਂ, ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਏਰੀਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਿਲਟ ਮੱਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਤੀ ਰੇਟ ਹੈ 800 ਤੋਂ 900 ਰੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਉਹ 1850 ਰੁਪਏ ਹੈ। यानी कि सरकारी खरीद 1850 है, लेकिन वहाँ पे 800-900 रुपए में बिकता है। तो ऐसे में किसान को कितना फ़ायदा या होता, कितना नुकसान होता है? अगर मान लीजिए मैं बात करूँ मक्की की बात करूँ, तो 1 कुंटल मक्की उगाने में किसान का कितना पैसा लगता है? कल उगाने की बात नहीं हैगी, बेचने में 900 रुपये का फर्क पड़ता है। जेड़ी लागत है वो तो वक्री है। मैं वही लागत पूछ रहा था कि लागत कितनी? लागत तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो मक्की का रेट है, जो असी बीजनी है मक्की की रेट, और भी कारपोरेट घराने ने आपदे कब्जे च कर लिया। जेड़ी मक्की का बीज है वो बड़ा महंगा है, स्प्रेहां बड़ियां महंगियां ने, ते जेड़ा डीजल है वो बहुत महंगा हो गया। इस करके उत्ते जेड़ा खर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। यानी कि डीजल भी महंगा हो गया, यूरिया भी महंगी हो गई, बीज भी महंगा हो गया। और ये जो 1850 रुपए का जो मक्की का रेट है, ये कि अभी मतलब हर साल ये रेट रिवाइज होता है क्या? हाँ, बिल्कुल रिवाइज होता है। तो जैसे पिछले साल था, क्या था? वो इदू पिछले रेट का पूरा रेट तो नहीं हमारे से पता, पर इस तो घट था। इससे घटता हर एक साल बढ़ता जाता है। वो भी सेंटर सरकार दे कंट्रोल दे नाल ही बढ़ता जितना बढ़ता है जी। तो यानी कि मतलब ये अगर इस तरह से हम कहें कि अगर चीज़ें महंगी होती हैं तो सरकार थोड़ी सी MSP का रेट बढ़ा देती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप भी साथ में आए हुए हैं, तो आप भी किसानी करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो कितना आपका खेत है और क्या उगाते हैं आप? सारी फसल होती है, जीरी होती है कि कणक होती है, मक्की होती है, टोटल जीरी किसको कहते हैं आप? चोना जी। चोना, वो चावल? हाँ जी, हाँ, चावल। एक्चुअली हिंदी आती है ना, तो हमें पता है। तो चोना भी हमने यहीं सीखा भी 3-4 दिन में, और जीरी भी यहीं सीखी। तो हम चावल और धान कहते हैं, और चावल आप चोना को कहते हैं और जीरी आप धान को कहते हैं। जी। तो अभी जैसे जब हम ये
गेहूं, कनक को गेहूं बोलते हैं। जब आप ये बात कर रहे हैं कि हम पैसों की बात कर रहे हैं, आंदोलन समाप्त करने की बात कर रहे हैं, सरकार रिक्वेस्ट कर रही, बट सरकार, मैं सभी लोगों से एक ही बार ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि भाई जब सरकार ये कह रही है कि हम आंदोलन में जो आप लोग मांग कर रहे हैं, जो बिल में संशोधन वो कह रहे हैं कि हम लिखित में आश्वासन देने को तैयार हैं, तो जब वो लिखित में आश्वासन देने को तैयार हैं तो हम उन आश्वासन को लिखित में क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਈਏ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਤ ਹੋਤੀ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਉਹ? 26 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ क्यों नहीं सब्सिडी दी जा सकती? बिल्कुल, ये आप समझिए कह रहे हैं कि भाई जब किसानों का जब आमदनी आप कह रहे हो दोगुनी हो जानी है, बिल हमारा इतना सही था, तो फिर संशोधन की आवश्यकता क्या है? और ये एक डिमांड बड़ी सही मुझे लगती है कि जब इतने सारे संशोधन करने ही हैं तो बिल को निरस्त कर दिया जाए और नए सिरे से बिल बनाया जाए, किसानों को भी बैठाया जाए। पता नहीं, सरकार तो कहती कि भाई हमने किसानों की भी राय ली, सब कुछ किया, तो कौन से किसानों की राय ली, कहाँ ले ली, कौन से कमरे में बंद करके ले ली, ये एक बड़ा सवाल उठता है। दूसरा एक बड़ा सवाल ये उठता है जो हम बार बार लगातार उठाते आ रहे हैं कि ऐसे जब महामारी पेंडेमिक के समय में इस कानून को ऑर्डिनेंस के थ्रू लाके पास कराने की क्या आवश्यकता थी, क्या जल्दबाजी थी? वो ये जो जल्दबाजी जो दिखाई थी, जो समझ में आई कि जब हम यहाँ पे आए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये किसान बिल, किसान कानून तो बाद में पास हुआ, उससे पहले ही अडानी अंबानी ने हरियाणा में और पंजाब में अपने जो स्टोर्स हैं वो बना लिए थे, जो इनका जो भंडारण का जो इतने भी शेल्फ्स थे वो बना लिए थे। तो यानी कि उनको लीगलाइज करने के लिए, या यूँ कह लें कि जो उन्होंने स्टोर्स वगैरह सब बनाए हुए हैं, स्टोरेज का तैयारी करी हुई है, वो उनको एक आगे मुहिम पुश देने के लिए उसको जल्दबाजी में कानून को लाए और लागू कर दिया। तो यहाँ पे ये जरूर देखने वाली बात है कि सिर्फ और सिर्फ क्या सरकार पूंजीपतियों की होके रह जाएगी, क्या सरकार पूंजीपतियों का ही फेवर करेगी? जो आम जनता है, जो आम नागरिक है, उसका सरकार किस तरह से भरण पोषण की जिम्मेदारी ले रही है? मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारा देश अभी जब भुखमरी की बात हुई है, हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94 नंबर पे आया, जिसमें से 102 देशों ने भाग लिए। और हमसे बेहतर भुखमरी में पाकिस्तान है, हमसे बेहतर नेपाल है, बांग्लादेश है, ये सारे देश हमसे बेहतर हैं। और हम जो कहते हैं कि हम विश्व गुरु बना देंगे, वो ऐसा क्या विश्व गुरु? भूखे पेट हम विश्व गुरु बनेंगे क्या? भूखे पेट क्या हम मंगल पे जाएंगे? ये सरकार को देखना चाहिए। तो इसलिए किसानों की इन बातों का, आंदोलन का मैं भी समर्थन करता हूँ, इनकी मांगों का समर्थन करता हूँ और ये चाहता हूँ कि ये बिल निरस्त किया जाए, नए सिरे से बैठ के एक बेहतर बिल बनाया जाए जिसमें किसानों का फ़ायदा भी हो, आप उद्योगपतियों का भी फ़ायदा करिए, क्योंकि उद्योगपति भी हो सकता है कुछ नई व्यवस्था दें, नई टेक्नोलॉजी दें, फ़ायदा लेकिन सबका होना चाहिए, विन विन सिचुएशन, यानी कि आपका भी ना नुकसान हो ना मेरा नुकसान हो, तभी देश आगे चलेगा, तभी आवाम आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।